हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो वेयर we are going to discuss about the important documents for the interview of MNS 21. Yes, you all have faced your CBT on 28th of July, for which expected cutoff is about somewhere between 115 to 120. The question paper was of very moderate level. It was not very easy and it was not very tough. The question paper was containing reasoning, so the expected cutoff lies between 115 and 120. Those students who are expecting their marks in this range, they can start their preparation for MNS 21. So today I am going to tell you about the important documents which you have to take with yourself when you are going to face the interview of MNS 21, when you are going at the centers for MNS interview. But before proceeding, I want to tell you that if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. And if you like the video and if you think that this video is very helpful to you and this video has helped somewhere in between, please don't forget to hit the like button and share the video. Don't forget to share your valuable comments, as each and every comment is very important for us. It means a lot to us. Okay, now I am going to discuss about the important documents which you should prepare when you are going to face the interview. Let me tell you that for every year, every past years, there were two interview centers. They were Pune and Delhi, the Command Hospital Pune and the Command Hospital Delhi. So they were the two interview center where you were facing your interview along with your medical test. Let me be very clear that no race is there. Many students have texted me on WhatsApp, they have WhatsApped me about the race. So let me be very clear, for the medical process of MNS, no race is going to be there. You don't have to run or no marathon, nothing is going to be there. A simple body checkup is going to be there along with your interview. So both the processes, your medical process and interview process, run simultaneously. From the day one, you have to face your medical procedure, and on the same day you have to face your interview also. So in a separate video we will discuss about the medical procedure, but now today we are going to discuss about the documents which are required for the MNS interview. Let me be very clear that if you are not having any of the document, you can give the undertaking over there at the center. Yes, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सेंटर पर अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, लाइक यू पीपल आर ग्रोइंग किड्स, तो आपको अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्हाट इज़ अंडरटेकिंग, क्या है, कहाँ से बनवाना है, कोई एफिडेविट है, ये क्या है, ये सब क्या है। तो कंफ्यूज मत होइए। अंडरटेकिंग इज़ नथिंग, जस्ट आप एक अनाउंसमेंट करते हो कि येस आई हैवंट सबमिटेड दीज मच या दीज मैनी डॉक्यूमेंट्स हेयर, बट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन आई विल सबमिट इट आफ्टरवर्ड्स। अभी तो मैंने नहीं सबमिट किए हैं ये डॉक्यूमेंट्स इस सेंटर पर, लेकिन अगर फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हें ज़रूर सबमिट कर दूँगा। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है, ये एक तरीके का आप कह दो एक अनाउंसमेंट होती है जो आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आप उन्हें लेकर जाइएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट देंगे जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर लिखना होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो वहाँ पर सबमिट नहीं किए हैं, और लास्ट में आपके साइन होंगे। ये होता है एक अंडरटेकिंग का प्रोसीजर फॉर्मेट जो आपको वहाँ पर फॉलो करना होता है। अब
बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, किसी भी आप एग्ज़ामिनेशन के इंटरव्यू के लिए जाइए, सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दे आर योर सर्टिफिकेट्स। आपकी जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उनमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी मार्कशीट्स होनी चाहिए, हम उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप चाहें तो उन्हें मेरे साथ नोट करते जाइए, एक प्रॉपर लिस्ट बनाते जाइए, ताकि आप एक चेकलिस्ट बना लें और उसमें टिक करते जाएं कि हाँ, दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, ये है मेरे पास, दिस डॉक्यूमेंट आई कैन सबमिट देयर, यहाँ पर मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी है, या फिर कैसे क्या करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। But before proceeding towards that section, I want to tell you something. Yes, you people have faced your CBT as I have told you earlier. Now, Study Mantra is going to start another batch of MNS 22. Yes, we are going to start the new batch for the preparation of MNS 22 examination, which is going to start from 2nd of August, that is on Monday, that is on tomorrow. यानी कल से हम अपना एक नया बैच MNS 22 की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर कि आपको इस जो बैच है इसमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स अपना इनरोलमेंट कराएंगे, दे विल गेट लाइव क्लासेस और 2 to 3 hours, मिनिमम 2 hours लाइव क्लासेस एंड मैक्सिमम 3 hours लाइव क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन संडे इफ़ रिक्वायर्ड, एंड PDF नोट्स अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इतनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, देन वी ऑल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लास इन आर सेपरेट ग्रुप। तो हम वहाँ पर आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने बैचेस में। इसके बाद बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या सिर्फ साइंस पढ़ाई जाएगी या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो एक बार आपको मैं फिर से बहुत अच्छे से बता दूं कि चाहे वो साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मीन्स एवरी सब्जेक्ट, हम आपको अपने बैचेस में हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। 1 hour इज़ डेडिकेटेड फॉर साइंस, जो हमारे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। इसमें 1 घंटे हम अपनी साइंस के लिए रखते हैं, साइंस पढ़ाई जाती है जिसमें आपको, और GS और इंग्लिश आपके ऑल्टरनेट डेज़ पर 1-1 घंटे के लिए क्लासेस रन करती हैं। संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जब भी रिक्वायर्ड होता है। ऑल्टरनेट संडेज़ पर आपके टेस्ट रखे जाते हैं। साथ ही साथ इस क्लासेस में इनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है। इसके बाद आपकी जो फ़ी वगैरह है ये आपको व्हाट्सएप करके पता चल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी कि इतनी कम अमाउंट में, अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने कम अमाउंट में कहीं पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर ऐसी फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मिलती हैं, देन आई विल टीच यू फ्री। बिकॉज हम आपसे एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं ताकि हम अपनी क्लासेस को प्रॉपरली रन कर पाएँ, बस। तो वी आर डूइंग आवर हार्ड वर्क, मेक श्योर योर इनरोलमेंट फॉर द सक्सेस। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि स्टडी मंत्रा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है अपने 21 के एग्ज़ाम में, और कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे नोट से थे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MNS 22। चलिए, अब बात करते हैं हम उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले जो मेन आपकी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर योर मार्कशीट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th और 12th की मार्कशीट, जो आपको अपने साथ रखनी है। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की 1 से 2 फ़ोटोकॉपीज़ अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल कॉपीज़, ये दोनों रखनी है। फ़ोटोकॉपीज़ शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको अपना नाम लिखकर अपने साइन करने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको अपनी 1 से 2 इन डॉक्यूमेंट्स की 1 से 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी अपने साथ रखनी है। सेट्स आपके फ़ोटोकॉपीज़ के होने चाहिए, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ले जाने हैं। 10th और 12th की मार्कशीट इज़ मैंडेटरी।
ये आपको याद से रख लेनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अच्छा, अभी कोरोना का पैंडमिक पीरियड है, तो हो सकता है जब तक इंटरव्यू आए तब तक कुछ बच्चों के पास उनकी ओरिजिनल जो सीबीएसई से मार्कशीट आती है, या जैसे हाई स्कूल का या फिर इंटर का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट अभी आया है, तो हो सकता है आपको उसकी मार्कशीट ना मिल पाए। तो उसके लिए आप एक कंप्यूटर ओरिएंटेड मार्कशीट आप निकलवा के, जो आपके बोर्ड रिजल्ट आते हैं उनकी मार्कशीट आप निकलवा के अपने पास रख सकते हैं, और ओरिजिनल के लिए आप वहाँ पर अंडरटेकिंग में दे सकते हैं, या फिर एक आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि अभी हमारी मार्कशीट इशू नहीं हुई है, जैसे ही इशू होगी आई विल सबमिट इट इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये वो सारे, ये जो 2 आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। इसके पास आपके पास एक आधार कार्ड आपका होना ही चाहिए। उस आधार कार्ड में आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम वही होनी चाहिए जो आपकी वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करते हुए टाइम फिल करी थी। कुछ बच्चों के जो पहले के आधार कार्ड बने हुए थे उनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा था, ना कि डेट। तो डेट या मंथ मेंशन नहीं किया गया था, सिर्फ ईयर मेंशन किया गया था। अब जो न्यू आधार कार्ड्स आते हैं उनमें क्या है, आपका ईयर, डेट और मंथ सब कुछ मेंशन किया जाता है। तो पुराने वाले आधार कार्ड जिनके पास हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 7 डेज़ के अंदर वो करेक्शन कर देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप वहाँ पर जाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि अब जो आधार कार्ड एक्सेप्टेड है उसमें आपकी सेम एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की हुई थी। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आपको क्या रखना है, आपके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो कि आपके गेजेस्टेड ऑफिसर के द्वारा आपके अटेस्टेड होंगे। येस, यू हैव टू सबमिट 2 लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स which should be attested by any gazetted officer। ये आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, या आप किसी भी आपने सपोज़ करिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप अटेस्ट करा सकते हो, या कोई और गेजेस्टेड ऑफिसर आपकी लोकेलिटी आपके एरिया में है तो आप उनसे अटेस्ट करा सकते हो। बट दीज कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी लेटेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास पुराना रखा हुआ है, आपने उसको यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट आपके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ से बनेगा। हालांकि सीबीएसई अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में देती है, और कुछ अगर स्टेट बोर्ड्स के हैं तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से या फिर आपको वहाँ पे बोर्ड का जो सेंटर है वहाँ से मिल सकता है। जैसे यूपी बोर्ड का तो इलाहाबाद से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो अलाउ किया जाता है वहाँ पे, या फिर स्कूल की टीसी, अगर आपने अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो आप स्कूल की टीसी लगा सकते हो, लेकिन आप उसको उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अंडरटेकिंग में देकर फर्दर आप, जैसे यूपी बोर्ड की मैं बात करूँगी क्योंकि हम यहाँ यूपी में हैं, तो आप वहाँ से इलाहाबाद से जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है, या जी हाँ प्रयागराज से जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है, ये आप ले सकते हैं। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड आपके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। ये चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ इफ़ देयर इज़ अ गैप ऑफ मोर देन 1 ईयर बिटवीन 10th एंड 12th, क्योंकि 1 साल का गैप तो वो 11th में जाता है, दैट इज़ तो अंडरस्टूड। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का आपका 10th और 12th के बीच का गैप है, समहाउ अगर कोई गैप आ गया है कि आपके कोई घर में इमरजेंसी आ गई, आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, आपने नहीं फॉर्म वगैरह फिल किया, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, एफिडेविट प्रोवाइड कराना है, जिसमें आपका उसका रीज़न मेंशन किया जाएगा कि ये जो 1 साल का गैप, 1 साल से ज़्यादा का गैप आया है, ये आपके 10th और 12th के बीच में क्यों आया है। दैट गैप सर्टिफिकेट इज़ वेरी मैंडेटरी। ये आपको बिल्कुल भी अपने साथ लेकर ही जाना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ से भी आपसे वहाँ पे इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि अगर आपके 10th और 12th के बीच में 1 ईयर से ज़्यादा का गैप है तो वो ईयर आपने कैसे यूटिलाइज़ किया, आप कहाँ रहे, या फिर गैप क्यों आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी है। इसके बाद
ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलने हैं। इसके साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा भाई, आप कहीं के भी अपने नियर अबाउट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के उसे किसी भी तहसील वगैरह से बनवा सकते हो आप। इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी कास्ट का प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी से स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए तो खैर ऐसा कोई कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे EWS है, चाहे कोई OBC है, चाहे SC ST है, क्योंकि इस बार से रिजर्वेशन प्रोसेस है वहाँ पर, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। ये सारे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको और क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं? जी हाँ, अभी यहाँ पे लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके साथ ले जाने हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि हमारे जो 21 के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी अपना CBT एग्ज़ाम दिया है, और जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी हुई थी 21 की प्रिपरेशन के लिए, आइए देखते हैं वो हमारे बैचेस के बारे में अपना क्या रिव्यू देते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे कि हमने पहले अपनी वीडियो में उनके व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए थे। उतने सारे स्टूडेंट्स को तो हम यहाँ वीडियो में नहीं ला सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने 2-3 अपने स्टूडेंट्स के रिव्यू यहाँ पर शेयर किए हैं। आइए देखते हैं, हो सकता है आपको एक मोटिवेशन मिले क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। आइए देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। Hello everyone, this is Muskan here to share my experience with Study Mantra classes, and which indeed was just fabulous. Right from the day when I had joined Study Mantra, I was like कि क्या ऐसा सच में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है कि टीचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो minutely and in detail for your competitive sections, competitive part. You know, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो there are many holes between our concepts and what is really existing, and so what we say that our concepts are not clear, our base is not so strong. But being with Mansi ma'am, who have literally worked very diligently on us, I have really felt that our gaddhas are filled up literally. She paid her attention to science, most primarily biology, GK, English, even reasoning part. She have cleared all our doubts with wholesome concepts. And not just this, we have got perfect relevant notes from her, and of course up to the mark. We have solved 100 to 200 questions on each and every topic. Test series were also there. Along with it, Mansi ma'am have prepared us and is preparing us for interview as well. You know, personally मुझे ऐसा लगता है in such a reasonable amount, I doubt कि मुझे इससे बेस्ट गाइडेंस, स्टडी मंत्रा से बेस्ट गाइडेंस आई हैव नेवर गॉट, मिल ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आई फील एंड गेटिंग अ टीचर, अ मेंटोर, सच अ कूल टीचर लाइक डॉक्टर मानसी मिश्रा मैम इज़ जस्ट अनएक्सपेक्टेड, इज़ जस्ट अमेजिंग, जो हर एक चीज़ इतने अमेजिंग वे में समझाती हैं दैट यू नेवर फील स्टडिंग अ बर्डन सॉर्ट ऑफ थिंग. And even when I was solving last year questions of few competitive exams, I was really amazed to find that many questions were there from her notes directly, from her test series directly. And you know, even in MNS 2021 paper, most of the questions, up to 70 to 75% of questions were directly from her test series and her notes. Isn't it cool, right? You know, that really amazed me a lot. And lastly, I must say, based on my personal experience, of course, Study Mantra is anti-phobia to each and every phobia of your competitive exams in such a reasonable cost. Hello, myself Saloni Jarwal. I am a student of Study Mantra. I want to say thank you to the Study Mantra. On the day when I was joining the classes of Study Mantra, from that day to the day of examination,
Every day my confidence level was boosted, and it's possible just because of this the motivation, the teaching, the notes, and the test series which provided by the Study Mantra. I want to say thank you especially to the Dr. Mansi Mishra ma'am. The way she was teaching, the way she was explaining the concepts is very nice. Study Mantra is the best platform for the preparation of MNS exam. There is a 50 to 60% questions are directly from the notes of the Study Mantra. The notes of Study Mantra are very, very helpful. Again, I want to say thank you to Dr. Mansi Mishra ma'am and Study Mantra. Thank you so much. Thank you so much, Study Mantra. Because of you, I have come to love and take interest in this subject. I found your way of teaching in very efficient. You give me the strength I needed to take the next step toward my dream of MNS officer. Your trick, which helps me to solve the question within a time. Your guidelines are very helpful. Thank you so much, Study Mantra. ओके तो आई होप आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो 21 बैच के स्टूडेंट्स थे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। आई नो मैंने यहाँ पे बहुत कम बच्चों के रिव्यूज़ शेयर किए हैं, जो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स थे जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे वो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर बहुत कम बच्चों के रिव्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हर बच्चे से एक वीडियो ला के शेयर करना तो दैट विल बी बोरिंग फॉर यू कि अरे यार क्या एक ही लाइन बार बार बच्चे बोल रहे हैं, क्या सुने। तो आई थिंक दिस मच proof is sufficient, this much motivation is sufficient to make sure your enrollment for the preparation of MNS 22 batch। क्योंकि हम क्या करते थे, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द क्वांटिटी, वी आर वर्किंग फॉर क्वालिटी। कि जितने वी हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर बैचेस, ठीक है। एक बार जितना हमने फिक्स कर रखा है वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ उनका एनरोलमेंट, वी विल क्लोज द एनरोलमेंट। क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, वी डोंट वर्क ऑन क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा एक साथ बच्चों को बुला लेना और इनरोलमेंट कर लेना, उसके बाद उन हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली उसकी वीकनेस पर ध्यान ना दे पाना, ये हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है क्वालिटी पे काम करना। जितने बच्चे हमने इनरोल कर रखे हैं उनकी एक एक इंडिविजुअल वीकनेस को टारगेट करना, उन्हें सपोर्ट करना ताकि वो अपनी उस वीकनेस को दूर करके अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाएँ, एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ और येस ऑफ कोर्स एक अच्छे MNS ऑफिसर बन पाएँ। ये हमारा मोटो रहता है, हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आई होप अब आप लोग देर नहीं करेंगे हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मंडे यानी कल से हम अपने बैचेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना आप डिले करेंगे बैचेस को ज्वाइन करने में, आई एम सॉरी टू से, आप उतना ही कोर्स पीछे छोड़ते जाएंगे, जिसके लिए हम आपको कोई आगे फर्दर हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो स्टार्टिंग से ज्वाइन करेगा वो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, जो जितना लेट ज्वाइन करेगा उसका पीछे का सिलेबस उतना ही छूट जाएगा, जिसमें हम चाह कर भी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जैसे कि डे 1 पे क्लासेस होती। चलिए अब रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे रिमेनिंग थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। देखिए ये तो वो पहले हमने पार्ट में जो वीडियो पे शेयर किया था, ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो आपके पास इनफ टाइम है उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि अभी CBT का आपका रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट आउट नहीं हुई है। तो आपके पास इनफ टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए आपके पास 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का समय है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराने का या इनमें करेक्शन कराने का। तो आप अभी बहुत अच्छे से इनमें प्रिपरेशन कर अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, एक चेकलिस्ट बना के उनको टिक कर सकते हो कि येस आई हैव दिस मच डॉक्यूमेंट्स या दीज मैनी डॉक्यूमेंट्स विच आई कैन टेक विद मी। इसके बाद अब आपको क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी है जो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है बट डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MNS इंटरव्यू। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, अगर आप
आपने स्पोर्ट्स में, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, अगर आपने किसी भी स्पोर्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, नेशनल लेवल या इंटर स्कूल लेवल ही खेला हुआ है, और आपने उसमें भले ही पार्टिसिपेट, कोई अचीवमेंट नहीं है, लाइक यू हैवंट वॉन एनी टाइप ऑफ मेडल देयर, कोई सिल्वर गोल्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। ठीक है, आप अपना वो सर्टिफिकेट लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के, इनका 5% रिजर्वेशन वहाँ पे कोटा आपको मिलता है, जो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन एक एडिशनल एक्स्ट्रा वेटेज आपको दिया जाता है। तो आपके पास आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का एक्स्ट्रा वेटेज है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप एक एनसीसी कैंडिडेट हैं तो ए और बी तो नहीं, ए और बी सर्टिफिकेट होल्डर्स की यहाँ हम बात नहीं करेंगे। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपना लेके जाना है, जिसका एडिशनल वेटेज आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का स्पोर्ट आपने खेला हो, चाहे वो सिर्फ पार्टिसिपेशन ही सर्टिफिकेट क्यों ना हो, लेकिन आपको वो आपके साथ लेकर जाना है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको आपके पास लेकर जाना है। अगर आप डिपेंडेंट हैं, यानी किसी एक्स ऑफिसर पर आप डिपेंड करते हैं, कोई ब्लड रिलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है जिसमें आपका नाम मेंशन है, तो आपको वो भी अपने साथ लेकर जाना है। इसके साथ आपकी जो आपके स्कूलिंग में या फिर कॉलेज लेवल पे कोई आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या फिर आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई आपको एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है अपनी अचीवमेंट के लिए, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेकर जाना है। हालांकि आपको पता नहीं चलता है कि इनका कोई वेटेज है या नहीं, बट डेफिनेटली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मेरे पास मेरा विद्याश्री का सर्टिफिकेट था और अमूल अवॉर्डी हूँ मैं, तो मेरे पास ये सारे एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट थे। दो आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव इन माई एकेडमिक्स। आई वॉज नॉट अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स सेक्शन, बट आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट इन माई एकेडमिक्स। सो आई एम अ अमूल विद्याश्री अवॉर्डी। I am having certificate for Olympiad with a very good international rank। तो मेरे पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं वहाँ पर अपने ले गई थी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको भी अपने ये सारे सर्टिफिकेट इस तरीके के लेकर जाने हैं। ओके, इसके बाद बता दूं कि आप जो भी अपने सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अपनी फ़ाइल में लगाएं। ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर आप सही से लगाएं। सबसे पहले आपके मार्कशीट्स होने चाहिए, सबसे पहले आपका आधार होना चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपकी ये जो सर्टिफिकेट्स एनसीसी सर्टिफिकेट, फिर आपके पास आना चाहिए आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, फिर आपके स्पोर्ट्स और करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये आप कितने अच्छे ऑर्डर में अरेंज करते हो, ये सारी छोटी सी छोटी बातें जब आप कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हो तो वहाँ पर नोटिस की जाती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको नहीं लगता कि क्या इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं, बट येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर 2 sets of photocopies of all the documents which you are having। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 sets फ़ोटोकॉपीज़ के बना लीजिए, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए और अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाइए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है और फ़ोटोकॉपीज़ वहाँ पर सबमिट करा ली जाती हैं। ये आपको अपने साथ लेकर ही जाना है और आपको अपने माइंड मेकअप करके जाना है कि हमें इतने अच्छे से अपने इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर होंगे ना, तो आप खुद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आप क्या करोगे, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वो एक वीक पॉइंट नहीं है जिस पे वो टारगेट कर सकते हैं। तो आपका एक मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि नहीं, एवरीथिंग आई हैव प्रिपेयर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई इंटरव्यू। इसके साथ आपने जो फ़ोटो अपनी लगाई हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसके आपको कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ही 8 से 10 फ़ोटोकॉपी 8 से 10 फ़ोटोज़ आपको अपने साथ वहाँ पर लेके जानी है, क्योंकि 4 to 5 फ़ोटोज़ वहाँ पर आपकी स्टिक करवा ली जाएंगी। ठीक है, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे फ़ोटोज़ लगाई थी उनकी 8 से 10 आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मिस हो गई है
तो परेशान मत होइए, कोई भी आप एक लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा लीजिए, पासपोर्ट साइज़ कॉपी तैयार करवा लीजिए और उसकी 8 से 10 कॉपीज़ अपने पास रेडी रखिए। So this was the complete information about the document required for MNS interview. I hope आपको एक पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप उन्हें अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। Thank you so much for being with us. Thank you so much for watching this video. Thank you everyone.